Ladies and gentlemen, today I, Tawan Tariq, will be going to recite some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. The God, Allah the Almighty, says that the believer who remembers me during the day, and I shall be with him. And also, I am the only one, and my angels bring you out from darkness, and I am the most merciful to the believers. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to the galaxy of intellectuals, dignitaries, invited guests, and most valued, our beautiful audience. Once said, switch your mentality from I am broken and helpless to I am growing and healing. The theme for the event for World Hemophilia Day 2023 is Access for All. Prevention of bleeds as the global standard of care. The call to action for community in 2023 is to come together and advocate with local policymakers and governments for improved access of treatment and care, with an emphasis on better control and prevention of bleeds for all people with bleeding disorders. This means the implementation of home-based treatment as well as prophylactic treatment to help those individuals to have a better quality of life. I, Dr. Asima Malik, with all respected members of Hemophilia Society of Kashmir, are here to extend you our warm and coordinated welcome on this important day. Our institution, Department of Pathology, Government Medical College Srinagar, has always aimed to develop and coordinate these events for better understanding of self-healing, their prevention, new treatment protocols, quick access methods for every individual who is registered with us. So keeping this in mind, it's the time to invite our honorable dignitaries to please occupy their respective places on the stage. Always inspired us to dream more, to learn more, and to do more. A man whose greatness is measured by what he has accomplished and the great work he has done and is doing continuously for overall care to our patients. It's my privilege to invite Dr. S. Bilal Sir, Professor and Head of Department of Pathology, Immunohematology and Hemophilia, Government Medical College Srinagar, to discuss on current scenario of hemophilia and care in India and J&K from diagnosis to the treatment part. Esteemed guests, my Professor K. Bosa, my dear friend and brother of the world, and Sandeep and all associates and colleagues, faculty, students, and dear patients, a very good morning to all of you. So this journey of hemophilia started in 2012. So we all are, as already said, that this is not one man's job to do all the things. It is usually a whole team of comprehensive care centers and comprehensive care people who are involved in giving care to the hemophilia and other associated bleeding disorders. So
मैं ज़्यादा उर्दू में ही बात करूँगा क्योंकि पेशेंट्स बॉडी और इसमें थोड़ा डॉक्टर्स कम हैं इसमें। जो हीमोफीलिया सिनेरियो इन कश्मीर है, इट स्टार्टेड इन जो पहले हम जो 2023 की थीम है, दैट इज एक्सेस फॉर ऑल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये थीम लेके हम इसको चलना है कि हर किसी पेशेंट को एक्सेस होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स बट टू अदर थिंग्स विच दे आर उनको चाहिए उनकी लाइफस्टाइल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें से बहुत से मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स आ जाती हैं, वो हम देख लेंगे आगे। तो जो बेसिकली जो हीमोफीलिया डे हम मना रहे हैं आज, यूजुअली है ये 17 अप्रैल को होता है, बट 17 अप्रैल को हमारा यहाँ पे रमज़ान था, इट वॉज ए मंथ ऑफ फास्टिंग, so that is why we were not able to celebrate it on the 17th of May 2023. So that is why we are postponed till this when the Ramadan was over. तो हम सबको पता है और हमेशा हम इसको मनाते हैं 17th अप्रैल को in the honor of Frank Shambu, whose birthday is 17th April, and who is the leader foundation of World Federation of Hemophiliacs. तो ये स्टार्ट हुआ है 1989। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि हमने देखा है जिस जर्नी में जो हमारा 11-12 साल का जो सफ़र है कि हीमोफीलिया एक ऐसा इसको हम बीमारी नहीं कहते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मैक्सिमम पेशेंट्स को तो हम नहीं बोलते हैं लेकिन डॉक्टर्स में भी अनअवेयरनेस है। तो ये डे इसीलिए बनाते हैं हम ताकि लोगों में ये फैल सके, इसकी जानकारी की है क्या हीमोफीलिया और इसके डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं, इसमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डायग्नोज होगा। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस हमेशा हर साल 17 अप्रैल को ये हम CMEs करते हैं, इसको जस्ट अवेयर करने के लिए कि इस बीमारी के जेनेटिक डिसऑर्डर को अच्छी तरह समझने में, ताकि जो पहले जो मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे हमारे में कंसेप्ट ये था हीमोफीलिया ये ऐसा कंसेप्ट था कि आप पेशेंट को हाथ लगाओगे तो ये मर जाएगा, ही विल ब्लीड टू डेथ। मैं अपने स्टूडेंट लेवल की और इतना ये स्केरी माहौल था कि हीमोफीलिया इज लाइक दैट, अगर इसको हम टच भी करें तो ब्लीड हो जाएगा तो ये मर जाएगा। लेकिन वो सिनेरियो खत्म हो गया क्योंकि वो बिकॉज ऑफ ऑल इज बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और जो इसकी बारे डिजीज, क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी सर्जरियाँ बहुत से ट्रीटमेंट है जो होते हैं एज नॉर्मल लाइफ जो बाकी गुजारते हैं वैसे हीमोफीलिया वाले भी गुजारते हैं। तो वो इसी वजह से है कि लोग धीरे धीरे जो ये CMEs जो ये प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं बाय दीज प्रोग्राम्स इवन डॉक्टर। तो वो इन चीज़ों का यही एक फ़ायदा है ये डेज मनाने। तो ये हमें पता है हीमोफीलिया की जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये फीमेल इसमें कैरियर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यूजुअली ये मेल्स में होता है क्योंकि इनमें X और Y क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स में XX होता है, तो दूसरा X क्रोमोसोम उसको दबा देता है, उसको नहीं करने देता है एक्सप्रेस, लेकिन मेल्स में XY होता है। तो अगर X में हीमोफीलिया जीन चला गया, वो डिलीट हो गया तो उसमें हीमोफीलिया हो जाता है। तो दैट वाई मेल्स आर मोर इन्वॉल्व इन हीमोफीलिया। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर, क्योंकि जीन जो बनाता है वो फैक्टर्स बनाता है, तो अगर वो जीन ना रहे, फैक्टर नहीं बने तो आपका हीमोफीलिया हो सकता है। अगर फैक्टर A डेफिशिएंसी है हीमोफीलिया है, अगर फैक्टर 9 है तो हीमोफीलिया B हो सकता है। तो यूजुअली इसकी जो प्रेवलेंस है वो हमने कल से भी सुना, बहुत से स्पीकर्स ने बोला कि ये एक हीमोफीलिया बॉर्न होता है एवरी 10,000 पॉपुलेशन, या एक हीमोफीलिया बॉर्न होता है एवरी 5,000 मेल बर्थ, मेल्स में एक या 10,000 में। तो अगर उसके हिसाब से हम पॉपुलेशन में ऐड करते हैं, इसी तरह हीमोफीलिया भी थोड़ा सा कम है, वो आउट ऑफ 20,000 है। आफ्टर एवरी 20,000 बर्थ्स यू हैव वन हीमोफीलिया बी। तो ये इसकी प्रेवलेंस है। हीमोफीलिया सी इज है। तो ये मैंने बोल दिया आपको माँ X और X वैसे कैसे होता है। अगर माँ कैरियर है, बाप अनइफेक्टेड है, तो उनमें 25% चांसेस होते हैं, जो 4 बच्चों में 25% उनके हीमोफीलिया बन सकता है। वो एक
कैरियर बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां इन कंटेक्स्ट ऑफ द हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया की पॉपुलेशन मतलब फर्स्ट लार्ज जो सेकंड कंट्री है वो ये है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 या 1.4 करोड़ है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1,40,000 पेशेंट्स। बट यूजुअली अभी तक हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो 20 या 22-23,000 है। दैट मीन्स कि हमारे पास ओनली 20% हमने डायग्नोज किए, तो 80% लोग जो हैं वो अनडायग्नोज। वो क्यों अनडायग्नोज हैं? वो इसीलिए अनअवेयरनेस है पेशेंट्स में, पेशेंट बॉडी में या डॉक्टर्स में अनअवेयरनेस है, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दे डोंट कम टू द सेंटर, दे डोंट कम टू द फॉर द टेस्टिंग थिंग, और दे आर नॉट स्क्रीन फॉर दैट। So that is why we are missing at least 70 to 80% of patients only because they are not diagnosed. तो अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में अगर हम पॉपुलेशन ले लें 1 करोड़ या 1 करोड़ 9 लाख, कश्मीर की बात, वैली की बात करूं तो 1 per 10,000 के हिसाब से हमारे पास होने चाहिए 1100 पेशेंट्स। अगर हम सारे पेशेंट प्रेवलेंस के हिसाब से देखें, हमारे पास 1100 हीमोफिलिक्स होने चाहिए, बट हमारे पास 406 है। 406 ब्लीडिंग है, नॉट ऑल हीमोफिलिक, दे आर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बट ये जो है कि मतलब इससे हम ये पता चलता है कि हम 20 या 30% हमने डायग्नोज किए हैं, 70% स्टिल वी आर मिसिंग। तो 70% लोग हैं, 100 में से अगर 100 हीमोफिलिक हैं, 30% हमने डिटेक्ट किए हैं, लेकिन 70 है वो अनडिटेक्ट। तो वो अनडिटेक्शन बिकॉज इज ओनली बिकॉज अनअवेयरनेस एंड उनमें वो अवेयरनेस है। और मैं ये पेशेंट्स को भी ये बोलूँ कि इनके जो मैटरनल्स हैं, मैटरनल अंकल्स हैं, मैटरनल कजिन्स हैं, तो हम स्क्रीनिंग कैंप करते हैं। माशाल्लाह हमने कोआगुलेशन लैब सेटअप की है, वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। हमने इसी साल बेथेस्डा एसएबी स्टार्ट किया है, तो हम वेट कर रहे हैं कुछ फंड्स, रिएजेंट्स का हमें शॉर्टेज है इस वक्त, बट वी आर ट्राइंग टू गेट मोर रिएजेंट्स सो दैट वी विल स्क्रीन ऑल पेशेंट्स, जो पेशेंट्स की फैमिली और फैमिली ट्री है, बिकॉज हमें वही एक टारगेट पॉपुलेशन है जिनको हमें देखना है। जो हमारे पास पेशेंट्स हैं और उनके मैटरनल्स हैं, मैटरनल कजिन्स हैं, उनका जो सारा फैमिली ट्री है, तो उनको हमें लाना है। कोई माइल्ड होगा, कोई मॉडरेट होगा, वो भी ऐसे ठीक तो लगता होगा, तो वो होगा मैं ठीक हूँ, लेकिन उनको हम टेस्टिंग करनी है। वी आर डूइंग द टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम उनको डिटेक्ट मोर एंड मोर करें, ताकि कोई अनइवेंचुअलिटी ना हो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मैं हीमोफिलिक हूँ, गॉड फॉरबिड ही हैज अ माइनर ट्रॉमा और एक्सीडेंट, तो ही विल ब्लीड टू डेथ अगर उसको कोई हीमोफिलिक उसको डायग्नोज नहीं हुआ। तो वो ये जो सफर है 2012 में स्टार्ट हुआ यहाँ पे, उस वक्त हमारे पास वही 80 से 90 पेशेंट रजिस्टर थे। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है 90 पेशेंट थे हमें 2012 में, तो ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो दिस इज ए थिंग, दिस ग्राफ 406 पेशेंट्स हमारे पास है। ये किससे हुआ? जब हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है हीमोफिलिया डे केयर सेंटर में, हमारे पास 4 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे पास कोआगुलेशन लैब है, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्कूल है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी जो कम्प्रहेंसिव केयर सेंटर में आपको चाहिए वो आपको सपोर्ट करते हैं। जो कल हमने देख लिया, कल ऑर्थोपेडिशियन था, कल पीडियाट्रिक सर्जन था, हमारे पास पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अफ्ताब साहब है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इवन न्यूरो सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, तो डेंटिस्ट्री है, डेंटल कॉलेज फुल फ्लेज्ड है। तो दे आर ऑल कोऑपरेटिव। ऑल पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं जिनको भी कुछ केयर चाहिए, चाहे उनको यूरोलॉजी की केयर, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी या पीडियाट्रिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, वट एवर सर्जरी, एवरी स्पेशलिटी इज अवेलेबल विद अस, विद द जीएमसी एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। तो हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पेशेंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी, क्योंकि पहले जब अवेलेबिलिटी ड्रग्स की नहीं थी हमारे पास, बहुत क्राइसिस थी, नाउ विद द हेल्प ऑफ NHM इज वेरी सपोर्टिव। डॉक्टर आदिल है यहाँ पे, डॉक्टर गोसाला एंड ऑल द प्रोग्राम मैनेजर्स, दे आर वेरी मच सपोर्टिव, दे आर इंक्रीजिंग जो भी उनको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं बजट का इन्हेंस करने के लिए,
तो वो देते हैं, उनमें कोई नकार नहीं दे। यूटी गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ बजट। सो अनलेस अंटिल यू हैव द बजट यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। So that is why, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कल बोला कि from last 3 or 4 years we don't have any sort of mortality। तो ये mortality क्यों नहीं है? Because हमें maximum patients जो severe hemophilics हैं उनको हमने replacement therapy पे डाला है। And there are regions where हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर वरुण बोल रहे हैं कि हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उस चीज़ से हमें कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। तो we are very much thankful to our administrators, to our bureaucracy, to our जो भी हमारी गवर्नमेंट है कि they don't interfere in the sense कि why आपको इतना बजट क्यों चाहिए। When we just justify them that it's for the patient, क्योंकि यहाँ पे बहुत से questions आ जाते हैं। हमारे टोटल हॉस्पिटल का बजट अगर 12 करोड़ है जनरल पेशेंट्स के लिए, तो हीमोफिलिक्स के लिए 18 या 20 करोड़ क्यों है? वो तो 300 या 400 पेशेंट्स हैं, तो इतने बड़े पेशेंट हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाते हैं डिस्कशन में, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, it is you should not compare with other non-communicable diseases like diabetes or tuberculosis or hypertension or malignancies or other things, because they are not so much, because इनमें जो bleeding start होता है, अगर मामूली सी ट्रामा हो या फैक्टर अवेलेबल ना हो, तो थोड़ा सा चलने में भी इनको bleed, they can bleed to the death, या जो life threatening bleeds हैं उनको कभी भी death हो सकती है। So you cannot revert back from any patient from the death। So that is the biggest challenge। In it we have to understand that कि हमें इनको रिप्लेसमेंट फैक्टर रखना है, चाहे हम इनको सीवियर टू माइल्ड ही बनाएं, लेकिन माइल्ड पे रखना है, या मॉडरेट ही बनाएं तो उस पे रखना है, ताकि इनका जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो उनका मतलब वी हैव टू प्रिवेंट फर्स्टली इनकी मॉडरेट। तो वो चीज़ समझते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इसीलिए और डायग्नोस्टिक बैकअप, तो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ डायग्नोस्टिक बैकअप, उससे भी बहुत मदद मिलता है हमें, क्योंकि ये आजकल का जो एरा है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आपके पास एविडेंस है देन यू कैन ट्रीट, यू कैन नॉट ट्रीट ब्लाइंडली, जो पहले होता था अनलेस अंटिल यू हैव अ डॉक्यूमेंटेशन। तो वो चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल, हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमने बहुत से जो चीज़ें देखी हैं। ये हमारा ब्रेकअप है, सीवियर हीमोफिलिया 292 है, और हमारे पास नॉन वेरिएंट का 26 है, हीमोफिलिया भी 47 एंड अदर्स। तो ये हमारा ब्रेकअप है डिफरेंट दिस पर्सन विद हीमोफिलिया, एंड दिस इज द मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास मेल 370 है, फीमेल 36 है। मोस्ट जो फीमेल्स में बहुत कम हीमोफिलिया होता है, हमारे पास 4 हीमोफिलिक्स हैं जो फीमेल्स हैं, बाकी रेस्ट ऑल आर वन विलमेंट डिजीज। तो ये आप देख सकते हैं फीमेल्स के साथ। और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज में हमें ये देख लीजिए आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तो श्रीनगर का पार्ट है, श्रीनगर में 103 है बिकॉज इट इज एक्सेसिबल। तो श्रीनगर के लोग हैं वो आते हैं टेस्टिंग के लिए, बाकी चीज़ फार फ्लंग एरिया से नहीं आते, जीएमसी और वो नहीं आते फॉर टेस्टिंग को अवेयरनेस काम है हम अपना काम, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने कल डिस्कस की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वहाँ का ट्रैवल, उनका खर्चा, उनका स्कूल छोड़ना, उनका लेबर छोड़ना, किसी का दिन काम का दिन छोड़ना है, वो क्यों आएगा, तो अनलेस अंटिल उसको कोई अच्छी सी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तब वो आए, अदरवाइज वो नहीं आए। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि ये अवेयरनेस हो जाए हर किसी में, ताकि हम जो हमारे पास 60 या 70% पेशेंट्स अनडायग्नोज्ड हैं, स्टिल दे आर विद अस बट वी आर नॉट एबल टू गेट देम, वो हम उनसे करेंगे कि आप उनको स्क्रीनिंग कैंप लगाएंगे और वी ट्राई टू गेट मोर। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो यही डायग्नोस पे जो है कि जो 70% पार्ट है उस पर हमें फोकस करना है, तो इसीलिए हमें डायग्नोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर्स में हमने अवेयरनेस की है कि डायग्नोस कैसे करें, तो बेसिक टेस्ट हर कोई करता है, लाइक CBC, प्लेटलेट्स एंड PBF एंड रूटीन कार्डियोग्राम, उसमें हम PT, APTT करते हैं, INR, तो वो बेसिक टेस्ट हर कोई करता है। हर कोई पेशेंट आता है, चाहे वो रूटीन में आता है, कोई सर्जिकल में आता है, तो उनके पास हम ये चीज़ें करते हैं, तो उसमें वो टेस्ट करके हमें फिर आपके प्लेटलेट्स पे एग्जाम देना है, प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिफेक्ट। अगर आपका PTA, APTT अबनॉर्मल है तो हमें सेकेंडरी हीमोस्टैटिक डिफेक्ट्स में देखना है, उसमें फैक्टर्स देखने हैं, हमें फैक्टर लेवल करने हैं, फैक्टर एसेस करने हैं, तो उनमें से हमें